वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। Hello students, I am Pramita Chaudhary from Maa Kalyanika Public School. I welcome you all to my environmental study class of 4th. Today we will discuss our chapter 2nd, the little ones. We will try to understand this chapter with these few main points, like I'll give you the introduction, then why are young ones produced, then reproduction, adoption, foster parents, and you will learn some new words like womb, orphanage, like this. So let's start our chapter with the introduction. I know you all have seen all kind of babies, like you have seen puppies, the dog babies, tiger babies like calves, cow babies, and small chicks of hen babies, and obviously human babies, like you are your babies of your parents, but like you are human babies. So now our next point is discuss here, why are young ones produce? Young ones क्यों produce करते हैं? Let's see. Animal and human beings produce young ones of their kind. It means जो animals होते हैं और जो human beings होते हैं and like us, वो produce करते हैं babies of their young ones like them. जैसे उन्हीं की तरह के जो यंग वंस होते हैं या कह सकते हैं बेबीज होते हैं, उन्हीं की तरह के बेबी वो प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स बनाते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? लेट्स सी। सो दे गिव बर्थ और ले एग्स सो दैट देयर काइंड डज नॉट डाई आउट कंप्लीटली। इट मीन्स वो इसलिए बर्थ करते हैं या एग्स देते हैं, ले करते हैं, ताकि जो उन्हीं की तरह के लोग हैं वो कम्प्लीटली डाई आउट या उनकी जो जाति है वो उनकी तरह के लोग हैं वो खत्म ना हो, ताकि उनकी जो फैमिली है कंटिन्यूसली जो उनका लाइफ मतलब वो चलता ही रहे। दैट्स व्हाई दे गिव बर्थ और ले एग्स, दे रिप्रोड्यूस। द प्रोसेस the mammal and human use to give birth or lay eggs called reproduction. It means जो प्रोसेस वो यूज़ करते हैं मैमल्स हो गए हमारे ह्यूमन और एनिमल्स, बर्ड्स, टू मेक देयर बेबीज, उनके बच्चे बनाने के लिए या पैदा करने के लिए, दैट प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन अगेन द प्रोसेस बाय विच ऑल living things produce more of their kind is called reproduction. This is the proper definition. It means वो प्रोसेस जिसमें ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस या मेक करते बनाते हैं मोर ऑफ देयर काइंड, मतलब उन्हीं की जैसे की तरह के लोग या उसी तरह के बेबीज, काइंड ऑफ दिस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। You have seen जब when baby in the initial time, when babies are very small, they can't eat or breathe by themselves. In mammals like human and animals, they develop, they grow inside of their mother's womb. I'll tell you womb. What is the womb? Womb, a place inside the mother's body where the baby grows. The womb is the place inside their mother's body where the baby grows. मतलब वो जगह उनकी माँ के शरीर के अंदर, वो जगह मोस्टली स्टमक, वो जगह जहाँ पे बेबीज ग्रो करते हैं अपने इनिशियल टाइम पे, और वो खुद से ना वो खा सकते हैं ना ही सांस ले सकते हैं। दे हैव कनेक्टेड विद द ट्यूब with their mother's body. Then with that tube, their mother body gives the food, the nutrition and the oxygen they can receive from that tube. They receive from the tube. That tube means जब बेबी अपनी मम्मा की स्टमक में, वोम में रहता है, तो वो खुद से ना वो खा सकता है ना ब्रीथ कर सकता है, तो वो एक
ट्यूब से अपनी मम्मा के बॉडी से कनेक्ट होता है, मदर की बॉडी से कनेक्ट होता है, और उसी ट्यूब के थ्रू वो रिसीव करता है सारी न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, और जब वो फुली ग्रोन अप, मतलब वो रेडी हो जाता है कि वो खुद से ईट कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, देन द बेबी कम आउट. When the baby able to breathe and eat, then the baby come out. And with the birds, we see birds lay eggs. In the egg, the baby grows. After when the baby fully grown up, then they hatch, the baby come out. और बर्ड्स में क्या होता है कि जब बर्ड्स ले एग करते हैं, अंडे देते हैं, तो बेबी उसी एग के अंदर ही ग्रो करता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो फुली ग्रोन अप हो जाता है, जब वो एबल हो जाता है कि वो बाहर आके फ्लाई धीरे धीरे वो ब्रीथ कर सकता है, ईट कर सकता है, तो वो हैच करके, मतलब उस अंडे को क्रैक करके बाहर निकलते हैं, और उसके बाद वो अपना लाइफ जर्नी स्टार्ट करते हैं. You have seen everywhere when you see any baby, you have seen their parents also, है ना? But sometimes something tragic happened with the kids. It means for example said there's one boy, now his name is Ram. He was going to Manali for vacation with his parents in a car, but somehow the driver slept in the car in night time. They was traveling in the night time. They met with the accident, and in that accident his parents got died. And that boy Ram was the only child. He was the only one who alive, but after that accident their parents died, so he's alone. So what will happen with the child? If he has any grandparents, they will take care of them, or if that child don't have anyone, so sometimes that place called orphanage. That's the orphanage. Orphanage, a place of stay for children who have lost their parents. It means आपने सभी जगह देखा है कि सभी के माँ बाप होते हैं, सभी के पेरेंट्स होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कभी किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ, जब वो जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि एक राम नाम का लड़का था, वो लड़का है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मनाली वेकेशन पे गया, और उस वेकेशन में वो कार पे जा रहे थे, लेकिन रात में जो ड्राइवर था कार का, उसके नींद आ गई और वो एक खाड़ी पे जाके गिर गए, लेकिन उस हादसे में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई, डेथ हो गई, और वही इकलौता बच्चा था जो अलाइव था. अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो उनकी टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं कोई रिलेटिव नहीं है, तब वो अगर उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो अकेला पड़ जाता है. तो क्या होता है, एक प्लेस कहते हैं उसे ऑर्फनेज. ऑर्फनेज में उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं. वहाँ पे उन बच्चों को रख के उनकी वो टेकिंग केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें स्टडी कराते हैं, और जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं तो वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं. बट समटाइम सेम थिंग हैपन विद द पेरेंट्स ऑल्सो. Happen with the sometime in any accident or somehow any disease, some parents can lose their babies. So if they don't have baby, they come to the orphanage. Sometimes they come to the orphanage and they adopt a baby. They can take care of their baby. Let's see the adoption. Okay, when someone brings up a child who is not born to them, it is called adoption. सो इट मीन्स एडॉप्शन वो है जब जैसे कोई पेरेंट्स है, जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं तो वो ऑर्फनेज में रहते हैं, सेम उसी तरह किसी के साथ हादसा हो, किसी कपल के साथ कि उनके बच्चे की डेथ हो गई, उनका एक ही बच्चा था, लेकिन फिर वो कई टाइम के बाद वो लोनली फील होता है, फिर उन्हें लगता है कि एक बच्चा होना चाहिए, तो वो कई बार क्या करते हैं, ऑर्फनेज ताकि एक बच्चे को जिनको उन्होंने बर्थ नहीं दिया है, जिनको उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है, तो किसी ऐसे बच्चे, किसी और के बच्चे को अपने घर लेके आते हैं अपना बच्चा बना के, और उसकी वो केयर करते हैं, है ना. तो that child, that parents, that couple brings their home for caring, that child called adopted, that child they call adopted child. And those parents who adopt the child and taking care of that child, they call their
फोस्टर पेरेंट्स, इट मीन्स जो अडॉप्ट करते हैं बच्चे, है ना, तो जिस बच्चे को वो लेके आते हैं उन्हें वो से हम अडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं। और जो पेरेंट्स मतलब जो कपल जिस बच्चे की केयर करता है वो उस बच्चे की फोस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। ओके, गॉट इट? सो आई वांट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स इन अ नटशेल। आज हमने देखा कि लिटिल वंस जो छोटे छोटे यंग वंस होते हैं, हर स्पीशीज, ह्यूमंस के, एनिमल्स के, बर्ड्स के, आपने सभी के बच्चे देखे हैं, वो क्यों होते हैं और ये यंग वंस से क्यों प्रोड्यूस करते हैं। वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो उन्हीं की तरीके के लोग हैं वो उनका जो उन्हीं की तरह के लोग हैं वो ख़त्म ना हो जाए, ताकि वो उनकी जाति और उनका फैमिली चलता रहे, ताकि उनके लोग बने रहें, इसलिए वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मैमल्स बर्थ करते हैं, गिव बर्थ, और जो अंडे बर्ड्स होते हैं वो ले एग्स, वो अंडे देते हैं। जो प्रोसीजर वो यूज़ करते हैं बच्चे देने के लिए और ले एग्स देने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, से रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो मैमल्स में या वुमेन्स में, एनिमल्स में, वो अपनी माँ की बॉडी के अंदर ही ग्रो करता है और वो खुद से ब्रीद और ईट नहीं कर सकता। तो एक ट्यूब से होती है, इस ट्यूब से वो अपने मम्मी की बॉडी से कनेक्ट होता है और इसी ट्यूब से उसकी मामा की बॉडी से उसमें न्यूट्रिशंस एंड फूड और ऑक्सीजन जाता है। जब वो बच्चा फुली ग्रोन हो जाता है कि वो एबल होता है ब्रीद और ईट करने में, तब वो बेबी के मामा के स्टमक से बाहर आता है, तो वो बाहर आता है। सेम जो बर्ड्स के साथ होता है, वो अंडे देते हैं और उसी अंडे में ही बच्चे जो बर्ड्स हैं वो ग्रो करते हैं। जब फुली ग्रोन होता है वो हैच करते हैं, मतलब अपने अंडे से बाहर आते हैं। और अपने इसके बाद देखा हमने अडॉप्शन। कई बार ऐसा होता है कुछ किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ हादसा हो जाता है, इतने जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनकी कोई रिलेटिव है तो वो उसका ख्याल रखते हैं, नहीं है तो वो ऑर्फनेज में उनको रखा जाता है, ऑर्फनेज वाले उन्हें ले जाते हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। सेम कभी कभी ऐसी ट्रेजेडी किसी कपल के साथ भी, किसी हस्बैंड वाइफ के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है कि उनके बच्चे के साथ कुछ हुआ है, उसको किसी तरह उनके बच्चे की डेथ हो गई या उनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑर्फनेज जाके वहीं से एक बच्चा ब्रिंग करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, मतलब उसे घर ले आते हैं, उसकी केयर करते हैं और उस बच्चे को हम कहते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। और इस अडॉप्टेड चाइल्ड को जिन कपल ने, जिस पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है केयर करने के लिए, उसे कहते हैं उनके फोस्टर पेरेंट्स। Understand this chapter nicely. After watching my videos, you all have to read the book. If you read the book after watching my videos, then you can understand the chapter nicely and it will be in your mind for a long time. Okay, so stay tuned.